السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد سے تروپتی جانے والا اسپائس جیٹ کا طیارہ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی تکنیکی خرابی کے باعث شمس آباد ایئرپورٹ واپس ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق طیارہ SG-2696 جو صبح 6:10 پر روانہ ہونے والا تھا 6:19 پر روانہ ہوا اور توقع تھی کہ یہ صبح 7:40 پر تروپتی پہنچے گا، تاہم طیارے نے اڑان بھرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد واپس شمس آباد ایئرپورٹ ہنگامی لینڈنگ کی۔ ایئر لائن کی جانب سے تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ BRS کی کارگزار صدر KT راما راؤ برطانیہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ وہ 20 اور 21 جون کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے باوقار آکسفورڈ انڈیا فورم کے اجلاس 2025 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے۔ اس بین الاقوامی کانفرنس کا اہم موضوع ہندوستان کی ترقی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیز ہوگا۔ KTR اس موقع پر تلنگانہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کی گئی کوششیں، صنعتی پالیسیوں کے نفاذ اور عوامی خدمات کو بہتر بنانے میں ٹیکنالوجی کے استعمال جیسے موضوعات پر اظہار خیال کر رہے۔ یہ پروگرام دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے طلباء، اساتذہ، صنعتکاروں اور پالیسی سازوں کی شرکت کے ساتھ منعقد کیا جا رہا، جہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہندوستان میں پائیدار ترقی حاصل کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوگی۔ KTR 24 جون کو حیدرآباد واپس ہوں گے۔ تلنگانہ کے کاغذ نگر ٹاؤن کے وسندھرا ڈگری کالج کے قریب چرچ کے پاس موجود VIP ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی جانب سے نالے پر ناجائز قبضہ کر کے تعمیر کی گئی عمارتوں کو کاغذ نگر میونسپل کمشنر انجیا کی نگرانی میں JCB کی مدد سے منہدم کر دیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر انجیا نے بتایا کہ میونسپل حدود میں جتنی بھی غیر مجاز تعمیرات ہیں انہیں منہدم کیا جائے گا۔ خاص طور پر نالوں پر قبضہ کر کے بنائے گئے ڈھانچوں کی نشاندہی کی جا رہی تاکہ مستقبل میں نکاسی آب میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میونسپل حکام کی سخت کارروائی پر ٹاؤن کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف سخت اقدامات ضروری ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے کاغذ نگر ٹاؤن SHO پریم کمار اور رورل CI سرینواس راؤ کی نگرانی میں بھاری پولیس بندوبست بھی تعینات کیا گیا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے مغل پورہ میں ایک عمارت میں آگ لگنے کے بعد کم از کم 10 افراد کو فائر بریگیڈ کے عملے نے بحفاظت بچا لیا۔ پولیس کے مطابق مغل پورہ میں واقع ایک ہمہ منزل عمارت کے گراؤنڈ فلور پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملنے پر مغل پورہ اور گولی گوڑا فائر اسٹیشن سے فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے۔ فائر آفیسر A بال راجو کے مطابق جب پتہ چلا کہ عمارت کے بالائی منزلوں میں کچھ افراد پھنسے ہوئے ہیں تو فائر مین نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں متصل عمارت کی چھت پر منتقل کر دیا۔ آگ ایک دکان میں لگی جہاں بڑی مقدار میں کارڈ بورڈ اور کاغذات ذخیرہ کیے گئے تھے۔ آگ کی وجہ سے بہت زیادہ دھواں پیدا ہوا جس کی وجہ سے مکین نیچے نہیں آ سکے اور چھت پر چلے گئے۔ بعد ازاں انہیں بحفاظت نکال لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی، تاہم درست وجہ کا ابھی تعین نہیں ہو سکا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کاروان حلقہ بندی کے تحت مجلسی پارٹی آفس حکیم پیٹ میں منعقدہ ایک پروگرام میں 35 مستفیدین کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیک تقسیم کیے۔ اس تقسیم کے دوران MLA کے ساتھ مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکن بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت اندرما حکومت اگر اس وقت کے چیف منسٹر KCR ویسلا ماری گاؤں کی تعمیر کرتے تو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ریاستی ریونیو، ہاؤسنگ اور اطلاعات کے وزیر پونگور لیٹی سرینواس ریڈی نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ وزیر نے یادادری بھونگیر ضلع کے واسلا ماری میں 205 اہل اندرما گھر کے مستفید ہونے والوں کو منظوری کے دستاویزات حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے تنقید کی کہ اس وقت کے چیف منسٹر KCR
ने वसलमरी गांव को गोद लेने और तरक्की देने के जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अब अगर कोई बातें सुनकर बहुत तकलीफ होती है कि केसीआर ने गांव वालों के साथ लजीज खाना खाया और अगवा नामी बूढ़ी औरत के पास बैठकर उसके लिए मकान बनाने का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि केसीआर की तरफ से की गई खुली धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया है और जैसा कि वजीर ने अपने दुख का इजहार किया है कि अगवा के साथ वसलमरी के तमाम गांव वाले केसीआर की बातों पर यकीन करते हुए अगवा बन गए हैं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल कलवा कुंटला कविता ने हैदराबाद में टीटीडी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के चेयरमैन BR नायडू से खैर सुगाली मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने तेलुगु रियासतों के बंजारा सुगली लंबाडी बिरादरी के पीठाधिपतियों को तिरुपति के हतेराम बावाजी मठ में खसूसी पूजा की इजाजत देने की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि इस माह की 30 तारीख को मुनक्किद जुदनी हतेराम बावाजी जयंती के मौके पर बंजारा पीठाधिपतियों और पुजारियों को मठ में रस्मी पूजा आरती और नई वैद्यम पेश करने का मौका दिया जाए। इसके लिए दरकार तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बंजारा पीठाधिपति भी उनके हमरा मौजूद थे। TTD चेयरमैन BR नायडू ने इन मुतालबात को मुस्बित अंदाज में कबूल करते हुए जल्द ही हतीराम बावाजी मठ के मुंतज़मीन क़बाइली पीठाधिपतियों और दीगर मुतल्लिक़ा शख्सियात के साथ एक ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करने का वादा किया। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि हतीराम बावाजी जयंती के मौके पर मठ में ख़ुसूसी पूजा आरती और नई वैद्यम की पेशकश के लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी और इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा। वाइस शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी पर अवामी मसाइल पर लड़ने की पाबंदियां हैं। उन्होंने कहा है कि हम चंद्रबाबू को बगैर समझे मीडिया के गवाह के तौर पर पूछ रहे। अगर हम दारुल हुकूमत में लड़ना चाहते तो वो हमें नजरबंद कर देंगे। वो स्टील प्लांट के लिए रोजों को सबोताज करेंगे। क्या तमाम पाबंदियां कांग्रेस पार्टी पर हैं? क्या आप बीजेपी के साथ खड़े होने और बहादुरी से लड़ने पर कांग्रेस को रोक रहे हैं? क्या YCP पर मार्चला के नाम पर निकाली जाने वाली यात्रा पर पाबंदी होनी चाहिए? क्या जगन पर मोदी का गोद लिया बेटा होने पर पाबंदियां हैं? जगन पर कोई पाबंदियां क्यों नहीं? ताकत क्या मुजाहरे पर कोई पाबंदी क्यों नहीं? మరోవైపేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరామర్శల పేరు మీద బల ప్రదర్శన యాత్రలు చేస్తున్నా కూడా ఎటువంటి ఆంక్షలు ఉండవా? కారణం ఏమిటి? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోడీ గారి దత్తపుత్రుడు కాబట్టి ఆయనకి ఏ ఆంక్షలు ఉండవా? कोरोना वायरस एक मर्तबा फिर तशवीश में इजाफा कर रहा। खबर है कि अमेरिका में कोविड का नया सब वेरिएंट दस्तक दे चुका है, जिसके शिकार मरीजों में नई अलामत देखी जा रही है। फिलहाल आलमी इदारे सेहत WHO और अमेरिकी सेहत एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस नए वेरिएंट का नाम NB.1.8.1 NEMS है। इससे पहले ये वेरिएंट चीन में भी मिल चुका है। इसके मरीज को गले में दर्द, नाक खराश होती है, इसलिए उसे रेजर ब्लेड थ्रोट नाम भी जाना जा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के हवाले से बताया जा रहा है कि खत्म हुए 2 हफ्ते के वक्फे में इस वेरिएंट के तकरीबन 37% मामले सामने आ चुके थे। सेहत एहलकारों ने इंतबाह किया है कि ये वेरिएंट दुनिया के 1/3 मामलों की वजह बन सकता है। निम्स के शिकार कुछ मरीज इससे गले में होने वाले दर्द का मुआवजा कांच के टुकड़ों को निगलने से कर रहे। इसके अलावा मरीज में नाक बंद होने या नाक बहना, थकान, हल्की खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द, इसहाल जैसी अलामात भी देखी जा रही।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कहा है कि वो जेनोम तरतीब हो रहा और ओमिक्रॉन के 4 नए जलीय किस्मों को अलग कर रहे हैं, जिनके पास बारे में माना जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में कोविड मामलों में हाल में हुए इजाफे के लिए जिम्मेदार हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत अपने वाक़े NIV के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि इस कोशिश से टीके की तासीर का अंदाजा करने में मदद मिलेगी। अहमदाबाद में हुई अफसोसनाक तैयारा हादसे के बाद एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है। एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि वो 20 जून से अपने वाइड बॉडी तैयारों से चलने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजों में 15% की कटौती करेगी। ये फैसला जुलाई के वसत तक नाफिज रहेगा। एयर इंडिया के मुताबिक ये कदम तैयारों की रिजर्व दस्तयाबी बढ़ाने के लिए उठाया गया है ताकि मुस्तकबिल में किसी भी तकनीकी या तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े मसले का हल किया जा सके। एयरलाइंस ने वाज़ेह किया है कि इसका मकसद ऑपरेशंस में इस्तेहकाम बरकरार रखना, मुसाफिरों को बेहतर खिदमत देना और गैर जरूरी अदम सहूलत से बचाना। एयर इंडिया ने बताया कि 20 जून से नाफिज होने वाले बैनुल-अक़वामी परवाजों का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। एयर इंडिया ने ये भी बताया कि वो हुकूमत गुजरात और वजारत शहरी हवाबाजी के साथ मिलकर अहमदाबाद हादसे के महलूकीन के कुंबों और जख्मी मुसाफिरों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। एयरलाइंस ने कहा है कि यह फैसला ऑपरेशनल इस्तेहकाम के लिए जरूरी है और हम मुसाफिरों को आखिरी वक्त में अदम सहूलत से बचाने के लिए पाबंद अहद हैं। हमें यकीन है कि मुल्क के लोगों और सभी स्टेक होल्डर्स के ताउन से हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सरेंडर करने के धमकी नुमा मुतालबे पर जवाब देते हुए कहा है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने गैर मशरूत तौर पर हथियार ना डाले तो ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल किया जा सकता है, जिसके जवाब में सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपने इत्तेहादी की मदद के लिए कोई मुदाखलत की तो उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस अमर का इजहार ईरान इसराइल जंग के 6 रोज एक अपने खिताब में किया। ईरान के सरकारी टीवी पर की गई अपनी तकरीर में खामेनेई ने कहा, हमारी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप के अल्टीमेटम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि किसी भी फौजी मदाखलत का बिलाशुबा उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई 1990 से इख्तिदार में हैं और ईरान में रियासत के तमाम मामलात के हतमी निगरान हैं। उन्होंने इससे कबल दिए गए अपने बयान में कहा था कि उनका मुल्क इसराइली रहनुमाओं के साथ अब कोई रहम नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंद पाक जंगबंदी के हवाले से अपना पुराना राग उलापा। बताया जाता है कि जंगबंदी का क्रेडिट खुद को देने के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी तारीफ की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई और इसके बाद रस्मी जोहराना दिया गया। मुलाकात का बुनियादी महवर ईरान इसराइल तनाज़िया और इलाकाई अमन बरकरार रखने पर था। व्हाइट हाउस ने इससे कबल कहा था कि ट्रंप ने मुनीर को इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की थी। मुलाकात के बाद सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, हमने ईरान इसराइल के मामले पर बातचीत की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर समझता है, वो इलाकाई अमन में अहम खिलाड़ी है। ट्रंप का ख्याल था कि पाकिस्तान की इलाकाई तफहीम और असर व रसूख को देखते हुए वो सिफारतकारी के जरिए इस बढ़ते हुए तनाज़े को कम करने में मदद कर सकता है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि मुलाकात जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने के लिए की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।